عید ملن پارٹی کے بعد وفاقی وزیر برائے بحری امور کیسر احمد شیخ اپنے ڈیرے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست چنیوٹ لیے چلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ہمارے علاقے کے معاملات ہیں، لوگوں کے کس طرح اور بہتر ہم نے کرنا ہے اپنی حکومت میں، اور اپنی وزارت کے بارے میں لوگوں کو بریف کر رہا ہوں کہ میری وزارت جو ہے وہ کن اہم شعبوں سے اس کا تعلق ہے۔ اور انشاءاللہ ہم، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ریسنٹلی جو بجٹ آیا ہے اس میں سب سے زیادہ فیسلٹیز فشریز کو ملی ہیں۔ فشریز کے لیے آپ سب کو میں دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس بزنس میں آئیں، ہیچریز جو لگائیں گے کوئی، یا جو فش پروسیسنگ ہے اس کے لیے تمام مشینری ہم نے زیرو ڈیوٹی کر دی ہے۔ اس کے لیے سیڈز جو آنے ہیں ان کے، یا فیڈ آنا ہے، جو بھی سمندر کی جو بھی ہماری مچھلیاں یا ابھی دوسرے جو مطلب ایسی فوڈز کے لیے معاملات ہیں، یہ کیونکہ اس میں ہمارے کراچی پورٹ ہے، ہماری پورٹ قاسم ہے، گوادر پورٹ ہے، اور ساحلی علاقہ 1100 میل کا پٹی ہے۔ یہ اتنا بڑا جو آج کل بلو اکانومی ہے نا، وہ دنیا پوری میں رائج ہے۔ صرف آپ اندازہ کر لیجئے کہ بنگلہ دیش جو ہے ہم سے 4 گنا اس کی جو بلو اکانومی ہے پاکستان سے زیادہ ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے، اس کے پاس 72 جہاز ہیں ان کے، ہمارے پاس 11 یا 12 جہاز ہیں۔ ہم نے جہازوں کو چلانا ہے تاکہ جو مال آتے ہیں پاکستان میں، اس پہ جو ہم فارن ایکسچینج خرچ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے جہازوں پہ، وہ $4 بلین خرچ کر رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح بہتر کریں، اور پاکستانی فلیگ ویسل ہم نے کروانے ہیں، کیونکہ پاکستانی فلیگ ویسل اس وقت پرائیویٹ سیکٹر نہیں آ رہا۔ ایک وقت تھا، میں اپنے ہی کئی دوستوں کو جانتا ہوں جن کے اپنے ویسل تھے، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے سیل ٹیکس لگا دیا کافی، اور وہ پاکستانی اب جا کے پاکستانی لوگ ہیں لیکن دبئی میں جا کے اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہاں کے فلیگ ویسل فلیگ وہاں کا لگاتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو میری ٹائم کی وزارت ہے، اس کو ہم کس طرح آگے بڑھائیں، اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ جس طرح حکومت میاں شہباز شریف صاحب انتھک محنت کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے، اور وہ انہوں نے ان کی سپیڈ پہ ہمیں بھی چلنا پڑتا ہے، وزیروں کو بھی، اور ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ پاکستان آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کس طرح مہنگائی کم ہوئی ہے۔ مہنگائی پچھلے مئی میں 1 سال پہلے 32% تھی، وہ 12% پہ آ گئی۔ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے 2 سال پہلے، پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی نا، تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ $50 ارب تھا۔ امپورٹ $80 ارب کی تھی، آج امپورٹ $55 ارب کی ہو گئی ہے۔ حالانکہ ایکسپورٹ وہی رہی ہے، اس کے را مٹیریل کو بھی منگانا ہے، اتنے ہی $55 ارب میں تمام اتنی ایکسپورٹ کے لیے را مٹیریل منگا رہے، تو 50 ارب سے خسارہ 25 ارب پہ چلا گیا ہے۔ آج جو ہماری آمدنی ہے، 2 سال پہلے جو ایف بی آر کی آمدنی تھی 7,000 ارب روپے تھی، اب ہم اس کو 13,000 ارب روپے کر رہے ہیں اس سال، اور ہم کافی سے پاکستان کی گروتھ اگلے سال 3.5% ہوگی انشاءاللہ، مہنگائی میں کمی آئے گی۔ تو یہ میاں شہباز شریف صاحب نے مصمم ارادہ کیا، اور دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیم جو ہے ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ میں اپنے چنیوٹ میں آ کے بھی اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو یہ یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، اس وقت یہ نہیں ہے، مشکلات ہیں، پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، لیکن جلدی بہتری کی طرف ہم ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، لیکن ہم ریلیف دیں گے لوگوں کو۔ سب سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہے کہ بجلی کے جو پرائسز ہیں، وہ کیونکہ کیپیسٹی چارجز ہیں، ہمارے نقصان ہو رہے ہیں، 500 ارب روپے کا بجلی میں نقصان ہے، حکومت کو اپنے جیب سے ڈال رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ کیسے ریلیف دیں۔ آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائسز کوئی 25 روپے لیٹر پچھلے کچھ دنوں میں یا اس سے زیادہ کم ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں، اور ویسے مہنگائی میں کمی آئی ہے، تو انشاءاللہ ہم سارے مل جل کے، پاکستان ایسا ملک ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہی ملک تھا۔ آج لوگ کئی جو ایسے باتیں کرنا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں، یا وہ ایسی بات کرتے ہیں جو مایوسی ہوتی ہے، پاکستان جب بنا۔ عید ملن پارٹی کے بعد وفاقی وزیر برائے بحری امور کیسر احمد شیخ اپنے ڈیرے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فیصل آباد ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون سابق وزیر مملکت حاجی اکرم انصاری نے عید پر مصروف دن گزارا۔
कहते हैं कि पहले दिन ऑफिस में मौजूद रहे, ईद के दूसरे दिन इलाका मकीनों से मिलने के लिए निकले हैं। डिवीजन सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी ईद उल अजहा के मौके पर अहलियान हल्का के साथ ईद मिलने में मसरूफ। ईद के तीनों दिनों में यही मसरूफियात होती हैं। हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि इलाका मकीनों के घरों में भी चक्कर लगता है, कुर्बानी की अपनी मसरूफियात होती हैं, इसी तरह से ईद गुजर जाती है। अजीजों अकारब के साथ मिलकर ईद की खुशियां दोबाला करते हैं। ईद उल अजहा का दूसरा रोज बच्चा पार्टी पहुंच गए तफरीही मकामात पर। बाग जिना में शहरियों का रश, कोई झूले लेने में मसरूफ तो कोई खाने पीने में मगन। मजीद नकवी से जी फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है और पहले दिन खाने पीने के बाद जो है वो आज बच्चे अपनी फैमिली समेत मुख्तलिफ तफरीही मुकामात की तरफ उन्होंने रुख किया है। बागे जना हो या फिर इकबाल स्टेडियम के तरफ मौजूद तफरीही मुकामात हो, वहाँ पर बच्चे फैमिलीज़ का रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ बच्चे ही मौजूद है जो कि झूले ले रहे हैं। बताइएगा कैसा महसूस कर रही है, कितना मज़ा आ रहा है आज? बहुत। किसके साथ आई हैं? अपनी कजन और बहन। कज़न के साथ आई हैं? ये आपकी बहन है? कज़न है। बताएं जी, कज़न कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मज़ा बहुत मजा आ रहा है। फैसलाबाद से ही हैं? जी जी। और भी आप बताएं किसके साथ आई हैं? इनके साथ। अच्छा, आप कज़न ही हैं सर आपस में? हाँ जी, कि बहन है? कजन। अच्छा, सबसे पसंदीदा झूला कौन सा है, ये वाला जिसके ऊपर बैठी हैं या कोई और? यही है। कितनी बार ले रही है? फर्स्ट टाइम ले रही हैं? फर्स्ट टाइम ले रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जी इनके लगते हैं वालिद साहब बैठे हैं साथ। बताइए जी, कैसा लग रहा है आपको आज झूले वगैरह ले रही है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्यों जी, बच्चों की डिमांड थी या खुद ले आए हैं? बच्चों की डिमांड। ये देखें जी, आज चूंकि ईद का दूसरा रोज़ है और जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन समेत यहाँ पर मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर पहुँचे हैं और यही कहना है बच्चों का भी वालिदैन का भी कि यहाँ पर जो तफरीही मकामात है यहाँ पर सैर करने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया फसी नकवी अपडेट करने के लिए। ईद उल अजहा के मौके पर पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में दफा 144 नाफिज। सीईओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जुबैर भट्टू की सिरिपाए जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सतियाना रोड पर लगाए गए सिरिपाए के गैर कानूनी स्टोर्स को खत्म करवा दिया। चीफ ऑफिसर की इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरान को दफा 144 को नाफिजुल अमल कराने की हिदायत। जुबैर भट्टू ने FWMC वर्कर्स के लिए लगाए जाने वाले मशरूब कैंपों का भी दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का भी पहाड़ी ग्राउंड कैंप का दौरा, मशरूब की क्वालिटी चेक की। चनेवट में ईद के दूसरे रोज भी शाहराहों की सफाई सुथराई जारी। मरकजी शाहराहों को धोकर फेनाइल और चूना डाल दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है शहर में आज भी दर्जनों आलाइशों को डंप करवाया गया है। हेल्पलाइन पर आने वाली कॉल पर फौरी अमला पहुंचा। शहरियों ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए भरपूर ताउन किया। ईद के तीसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। अपडेट करते चले अपने नाजरीन को। चनेवट में ईद के दूसरे रोज भी शाहराहों की सफाई सुथराई जारी। मरकजी शाहराहों को धोकर फेनाइल और चूना डाल दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है शहर में आज भी दर्जनों आलाइशों को डंप करवाया गया। हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल पर फौरी अमला पहुंचा। शहरियों ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए भरपूर ताउन किया। ईद के तीसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चनेवट मोहम्मद आसिफ रजा की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी का अमला आज दूसरे रोज भी शहर की जो अहम शाहराएं हैं उनको साफ करने में मसरूफ रहा। इसमें जंग रोड शामिल है, सरगोदा रोड शामिल है, कचहरी रोड शामिल है, जुमरा रोड शामिल है, जिनको म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने धोकर वहां पर फेनाइल और चूने का छिड़काव किया है। डिप्टी कमिश्नर चनेवट का ये कहना था कि दूसरे रोज भी बड़े पैमाने पर जो सफाई का ऑपरेशन है जारी रहा है। अब तक मौसूल होने वाली जितनी भी कॉल्स हैं, जितनी हेल्पलाइन पर कॉल्स आई हैं, तमाम कॉल्स को रिस्पॉन्ड किया गया है। उनका ये कहना था कि तीसरे दिन भी ईद के जो सफाई का ऑपरेशन जारी रहेगा और इस वक्त शहर में जीरो वेस्ट का जो हमारा मोटो था उस पर हम अमल पैरा हैं और आज भी तमाम जगहों पे जहां जहां से भी अलाइशियां उठाने के लिए कॉल्स आई हैं उनको वहां से उठवा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। फैसलाबादियों ने गोश्त तकसीम के बाद लजीज खानों के लिए कमर कस ली है। मर्द और बच्चों की किचन पर नजर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर राना सिकंदर आजम और अहले खानदान ईद के मजेदार खानों के मुंतजिर। कहते हैं गोश्त की तकसीम के बाद अब सिर्फ खाने का इंतजार है। मजे जानते हैं मरियम रजा की रिपोर्ट में।
ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद घरों में दावतों का सिलसिला शुरू। खातूने खाना मेहमानों के लिए मजे मजे के फरमाइशी पकवान घरों में बनाने लग गयी। साबिक सदर राना सिकंदर आजम कहते हैं, पहला दिन गोश्त तकसीम करने में गुजर गया, आज दावत का दिन है, सब फैमिली वाले इकट्ठे होंगे। कल हमने कुर्बानियाँ की हैं, गोश्त में सारा दिन मसरूफ रहे हैं, तो अभी चूंकि हमारा ना प्रोग्राम है लाहौर अपनी बेटी के पास जाने का, तो खाना खाने के बाद जैसे ही खाना सर्व होगा तो उसके बाद हम लाहौर को शिफ्ट जाएंगे। मटन पुलाव, कोरमा और दीगर पकवान बनाए जाएंगे। लड़कियां कहती हैं, ईद का मौका है, अपनों के संग मिलकर बैठने का मौका होता है। कल काफी काम किया, अब तैयार हो गए हैं और खाने का इंतजार है। हमने कल सारा दिन मम्मा के साथ काम किया है, तो आज कहा था कि आज हम तैयार होंगे फुल, तो आपने खाने मजे मजे के बनाने हैं, तो हम बस खाना खाएंगे। आज अपनी बहन की तरफ जाना है, तो हम तैयार श्यार होकर बैठे हुए हैं कि अब बहन की तरफ ही जाकर कुछ करेंगे, अगर उसकी हेल्प करनी हो, वरना अब हम हेल्प नहीं कर रहे मम्मा। खवातीन की ईद तो किचन में गुजर जाती है। मजे मजे के पकवान बनाकर बच्चों ने फरमाइशें की थी, कोरमा भी बनाया गया और शाम में बारबेक्यू का प्लान है। कैमरामैन मोहम्मद इमान अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद कुर्बान के मौके पर खातून खाना की एक ही फरमाइश, कुर्बानी का गोश्त खाना है तो सिर्फ गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ। सिरिपाए हो या फिर कीमा, सबके साथ रोगनी नान खाने का मजा दोबारा कर देता है। शहर भर में नान पॉइंट्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। पर शदीद गर्मी के पेश नजर खातूने खाना की एक ही फरमाइश, कुर्बानी का गोश्त खाना है तो सिर्फ गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ। सिरिपाए हो या फिर कीमा, सबके साथ रोगनी नान ना सिर्फ खाने का मजा दुबाला कर देता है, बल्कि शदीद गर्मी में खातूने खाना की रोटियां पकाने से भी जान छूट जाती है। भर में नान पॉइंट्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गोश्त के साथ रोगनी नान का अपना ही मजा है। गर्मा गर्म रोगनी नान खरीदने आए हैं। गोश्त तो ऑलरेडी घर में बना ही होता है, तो गर्मी की शिद्दत मद्देनजर रखते हुए जो है वो फैमिली भी जो है ना वो कासर होती है कि घर में खाना जो है ना सालन बन गया तो रोटी जो है ना वो नान जो है ना वो बाहर से ले आए, तो इसलिए इस लिहाज से इनकी दिहाड़ी भी लग जाती है और जो है वो घर वालों की जान भी छूट जाती है। कल से रश माशाल्लाह बहुत ज्यादा है और आज भी बहुत ज्यादा है और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा है। ईद कुर्बान के मौका पर नान के बढ़ते इस्तेमाल पर नान फरोशों की भी चांदी हो गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद का दूसरा रोज बच्चों की मौज मस्तियां जारी। शाम होते ही बच्चों ने पार्क्स में डेरे डाल दिए। दिन भर झुलसा देने वाली गर्मी के बाद शाम में बच्चे घरों से निकल आए। झूले झूलते और मौज मस्ती करते बच्चों की खुशी दीदनी है। मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा दिन भर झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब शाम को बच्चे पार्कों का रुख कर रहे हैं। जंग शहर के मुख्तलिफ पार्कों में इस टाइम मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं, बच्चों के साथ है। दिन भर जो है वो बच्चे गर्मी और हब्स के बाइस घरों में बंद रहे, अब अपने वालिदैन के हमरा जो है वो पार्कों में पहुंच चुके हैं। मेरे साथ कुछ फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आप बच्चों को पार्क में लेकर आए हैं? जी, आप हम फैमिली के साथ आए हैं और सारा दिन गर्मी थी और अब हम फारिग हुए हैं बच्चे सबको लेके। पार्क में बहुत अच्छा माहौल है, बच्चों के लिए झूले शूले लगे हुए हैं, तो अब हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, तो इसी से हम मतलब है ना। आज ईद का दिन था तो दूसरा दिन था, आप ससुराल नहीं गए, बच्चों को पार्क लेकर आ गए? नहीं, हम ससुराल नहीं गए, हम बच्चों को यहाँ लेके आ गए हैं इधर, क्योंकि यहाँ इनका यही कहना है कि शाम है, दिन भर गर्मी रही और अब बच्चों ने जिद की तो उनको पार्कों में लेकर आए हैं। मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा, पार्क में आए हैं, मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हम झूले लेने आए हैं, फैमिली के साथ खेलने उलने आए हैं, फिर अब वो बाबा भी आ रहे हैं। बच्चों का भी कहना है कि खूब इंजॉय किया जा रहा है और आज ईद का दूसरा दिन जो है वो इसी तरह गुजारेंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। ईद के दूसरे रोज टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। पार्क में फैमिलीज का रश लग गया। शहरी का कहना था कि दोस्तों के हमरा पार्क में आए हैं, साल बाद सब दोस्त ईद के मौके पर इकट्ठे होते हैं, शाम का खाना भी साथ खाएंगे। मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने ईद के दूसरे दिन से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जो है उस तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। शहरी जो है वो पार्क्स का रुख कर रहे हैं, फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों के हमरा। इस वक्त मैं टोबा टेक्सिंग के फॉरेस्ट पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो शहरी अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरे मौजूद हैं। कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइए जो है वो किसके साथ आज पार्क में आए हैं, ईद का दूसरा दिन किस तरह से मना रहे हैं, क्या एक्टिविटी करेंगे और जो है वो ईद के दूसरे दिन जो है वो दोस्तों के साथ क्या प्लानिंग बनाई है आज के दिन को एंजॉय करने के लिए? दोस्तों के साथ आए हैं, हमने कहा मौसम बहुत गर्म था, एंजॉय करने के लिए हम पार्क में हैं, टोबा पार्क यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी इधर से होकर बाद जाएंगे, खाना खाएंगे, आउटिंग वगैरह पे निकले हुए हैं सब दोस्त। हमने कहा चलो एंजॉय हो जाएगा, ईद का दूसरा दिन है।
ये सब दोस्तों के साथ इंजॉय हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, नौजवान यहाँ पर जो है वो सेल्फीज टिकटॉक्स भी बना रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। इस वाले से उनका ये कहना है कि ईद के मौका पर जो है वो दोस्त इकट्ठे होकर जो है वो सैर व तफरीह के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं, पार्क्स में मौजूद हैं। इस वाले से उनका ये कहना है कि ईद के दिन बहुत जो है शुक्रिया वो अहमद नदीम।